Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, I welcome you all for the SY Basic Chemistry Paper 3 Unit 2 Classical Method of Analysis. So friends, in our last lecture we have seen the various steps involved in gravimetry. In that we have seen the role of digestion. Okay, so what is digestion? Digestion means you have to heat or boil the precipitate along with its solution in a water bath. Okay, so when you heat that type of solution for 30 to 35 minutes along with its solution, it will help you to develop a proper particle size, that is crystalline type of precipitate. Then it will also develop the crystal properly and it will help to remove the post and co-precipitation, that is impurity can be developed during precipitation step. So that was the role of digestion. Now today we will see the next step should be taken in precipitation gravimetry, that is filtration. Okay, so very first step was precipitation. In your solution you have added precipitating agent so that precipitate will form. What care and what steps should be taken, that we have already discussed. Then second step is digestion. You have to heat your precipitate along with its solution in water bath. And now the third step is filtration. Okay, so in filtration what you have to do, gravimetric analysis involves filtering of precipitate sample through a special type of filter paper known as Whatman filter papers or sinter glass crucibles. Okay, so once your digestion is over, then you have to carry out the step of filtration. So this type of technique will separate your precipitate from its mother liquor. वो जो solution है आपके precipitate के साथ उसको remove करना, उसे क्या कहते हैं, mother liquor. So the filtration step will separate your precipitate from the mother liquor. Okay, so main objective of this step is that you have to separate your precipitate from its own solution. So it is actually carried out using filter paper. We all know from our 9th 10th standard we are carrying out this type of technique to separate the precipitate from its solution. तो ये जनरली किस चीज़ से करते, या तो फिल्टर पेपर के साथ करते या फिर सिंटर ग्लास क्रूसिबल के साथ करते. ओके, सो व्हेन फिल्टर पेपर्स आर यूज देयर शुड बी सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर. ओके, वो जो फिल्टर पेपर है इट शुड बी सम स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर. It should have very small ash content. Okay, what is the meaning of that? कि see sometime or what happen, it is very difficult to separate your precipitate from your filter paper. जिस filter paper के ऊपर आप precipitation कर रहे हो, filtration कर रहे हो, उसमें से precipitate को निकालना मुश्किल होता है. It gets stuck to that particular filter paper. या फिर sometime that filtrate और our precipitate is unstable. जैसे ही आप उसको हीट करोगे वो ब्रेक हो जाएगी एंड इट विल डिकम्पोज अलॉन्ग विथ योर फिल्टर पेपर. तो उस चीज़ में क्या करते हैं, यू हैव टू बर्न दैट फिल्टर पेपर अलॉन्ग विथ योर प्रेसिपिटेट. तो हम लोगों को याद होगा विथ आवर क्रूसिबल वी हैव डन दिस, राइट. तो हम जो फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद क्या होगा, पूरा प्रेसिपिटेट आपका फिल्टर पेपर में आ जाएगा. सो यू हैव टू मेक a small cone of that particular filter paper. तो filter paper और उसके अंदर क्या है, precipitate, उसका पूरा एक कोन बनाते हैं small and that you have to burn and that ash along with that precipitate is taken in a crucible. Okay, फिर उसको हम लोग हीट करने रखते हैं. So in that case the ash content of that precipitate or that filter paper should be very less. इसीलिए जनरली सर्कुलर टाइप का वॉटमन फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं. Okay, so whatever that filter paper is used, that is called as Whatman filter paper. So the ash value of 11 centimeter circular Whatman filter paper is nearly 0.00001 gram. So it is very negligible, right. So either you can carry out filtration using filter paper or you can also use sinter glass crucible. अगर आपकी precipitate अच्छी है ना, उसका साइज़ अच्छा है, देन यू हैव टू कैरी आउट इट यूजिंग फिल्टर पेपर. लेकिन अगर आपकी प्रेसिपिटेट बहुत थीन है, उसकी पार्टिकल साइज़ बहुत कम है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट इट यूजिंग फिल्टर पेपर. देन यू हैव टू यूज़
सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सो ये कैसे होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ओके, इट इज़ अ थिक रेजिस्टेंट ग्लास हैविंग अ पोरस डिस्क एट दी बॉटम ऑफ इट। तो एक छोटा सा क्रूसिबल होता है, उसके नीचे क्या है, देयर इज़ अ पोरस प्लेट। जो स्पंज आते हैं अगर, उनका एक छोटा सा प्लेट उसके नीचे लगाया होता है। सो व्हाट इज़ रोल ऑफ दैट व्हेनेवर इट इज़ अटैच टू अ सक्शन पंप और वैक्यूम पंप, और ऊपर से आप आपका सॉल्यूशन पोर कर रहे हो, तो स्लोली क्या होगा, पूरा जो वाटर है या फिर मदर लिकर है, इट विल कम डाउन यूजिंग सक्शन, और आपका जो प्रेसिपिटेट है वो ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द रोल ऑफ filtration in gravimetry. It is either carried out with Whatman filter paper or sinter glass crucible. Then next step is also very important, that is role of washing. Okay, so some amount of electrolyte mixed to form precipitate remain adsorbed on the surface of particle of precipitate. जो भी हमारा precipitate है उसके ऊपर कुछ foreign particle रह जाते हैं. Hence it is essential to wash the precipitate with water to remove the sticking electrolyte or also some kind of impurities and before estimating it quantitatively. तो हम लोगों को जब आगे की स्टेप्स करनी है उसके पहले हम लोगों को क्या करना है, यू हैव टू कैरी आउट द वॉशिंग। ओके, तो वॉशिंग हम वाटर के साथ कर सकते हैं या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ कर सकते हैं, टू रिमूव द फॉरेन मटेरियल अटैच टू योर प्रेसिपिटेट, है ना। वी वांट प्रेसिपिटेट इन प्योरेस्ट फॉर्म। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को प्रेसिपिटेट वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए जो सॉल्यूशन हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉशिंग सॉल्यूशन। इट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ओके, सो व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वॉशिंग सॉल्यूशन? सो वेरी फर्स्ट, वो जो अपना सॉल्यूशन है, इट शुड नॉट हैव एनी एक्शन ऑन प्रेसिपिटेट। ऑब्वियसली उसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए अपने प्रेसिपिटेट के साथ, नहीं तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी एंड वी विल गेट लेस अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो देयर शुड नॉट बी एनी एक्शन ऑन आवर रिक्वायर्ड प्रेसिपिटेट। दूसरा, इट शुड डिज़ोल्व ऑल द फॉरेन इम्प्योरिटीज़। ये भी ज़रूरी है, प्रेसिपिटेट के साथ कोई एक्शन नहीं, लेकिन जो फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन पार्टिकल है या फिर इम्प्योरिटीज़ है, उसको उसने डिज़ोल्व करना चाहिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ इट शुड बी इजीली वोलाटाइल। अभी आप लोगों ने वॉशिंग तो कर दिया, लेकिन अगर वो वोलाटाइल नहीं है या फिर उसी में चिपक गया तो क्या होगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रिमूव दैट सोल्यूशन, है ना। प्रेसिपिटेट से वो सोल्यूशन निकालना भी तो है जो वॉशिंग वाला सोल्यूशन है, तो इसीलिए वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ईजिली वोलाटाइल। तो आप उसको थोड़ा सा हीट करते हो या रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ देते हो तो वो धीरे धीरे वोलाटाइल होके इवापोरेट हो जाएगा, लाइक अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल इज़ ऑल्सो आइडियल वन। फिर फोर्थ उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, इट शुड नॉट फॉर्म एनी इंटरफेयरिंग प्रोडक्ट विथ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व तो नहीं करना चाहिए, ऑल्सो इट शुड नॉट फॉर्म एनी इंटरफेयरिंग प्रोडक्ट विद द प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के साथ कोई उसका प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होना चाहिए। सो दिस वे दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वॉशिंग सोल्यूशन। तो जब हम लोग वॉशिंग करते हैं तब क्या करते हैं, वी आर गिवन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन फॉर वॉशिंग। तो जैसे आप लोगों ने 1:1 अल्कोहल लिया, 1 पार्ट वाटर 1 पार्ट अल्कोहल, मतलब दोनों 50-50%। या फिर जो भी हम लोग सोल्यूशन लेते हैं तो वो सोल्यूशन से हम जब वॉशिंग करते तो हमें क्या करना चाहिए, दैट इट शुड हैव अ प्रॉपर स्टेबिलिटी ऑफ योर प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट तो स्टेबल होना चाहिए और जो आपके फॉरेन पार्टिकल है वो सारे निकल जाने चाहिए। सो टू कैरी आउट दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट मोर नंबर ऑफ वॉशिंग with small amount of washing solution is most appropriate। मतलब जब आप लोग वॉशिंग करते हो तो आपको क्या करना है, आपको छोटा छोटा अमाउंट ऑफ वॉशिंग सॉल्यूशन लेना है। जैसे आपने 1:1 अल्कोहल सॉल्यूशन बना के रखा है तो आपको उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट लेना है एंड यू हैव टू गिव मोर नंबर ऑफ वॉशिंग। मतलब थोड़े थोड़े पार्ट से आप 4-5 बार अपने प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू गेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, कि अगर आपको मानो
50 ml वॉशिंग सोल्यूशन दिया हुआ है ना। तो 50 ml में क्या होगा, 25% विल बी योर वाटर एंड 25 ml इज़ योर अल्कोहल, दोनों 1:1 में है। तो ये जो आपका 50 ml वॉशिंग सोल्यूशन है उसको आपको एक ही बार में नहीं डालना है ना। यू आर वॉशिंग योर प्रेसिपिटेट, सो आपने 50 ml ले लिया एंड यू आर पोरिंग वन टाइम, तो उससे आपका जो वॉशिंग है वो अच्छा नहीं होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to take 10 ml, give one time washing, again take 10 ml, give slowly washing, ऐसे 5 times आपको धीरे धीरे वॉशिंग देना है ना। सो दिस वे to get effective washing, to remove all foreign particles and to get best or stable precipitate, what you have to do, you have to take small amount of washing solution and you have to give more and more number of washing, है ना। So this is all about washing of our precipitate. Now next important step is drying और ignition. देखो अभी क्या करना है आपको, अपनी जो precipitate है उसको dry करना है ना। So drying और ignition of the precipitate is very important. What you have to do, heating of precipitate below 250 degree Celsius is referred as drying. तो drying और ignition किस किस चीज़ को कहते हैं, है ना। तो अगर आप अपनी precipitate 250 डिग्री के नीचे हीट करते, यू हैव टू कीप इट इन ओवन, राइट। जो हमारी फ़िल्टर पेपर के अंदर क्या है, प्रेसिपिटेट है, उसको आपको ओवन में रखना है ना। सो अगर आप उसको 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे हीट करते हो तो उसे कहते हैं ड्राइंग। द पर्पज़ ऑफ ड्राइंग एंड इग्निशन, अगर उसके ज़्यादा उसके ऊपर हीट करते हो, है ना, देन इट इज़ कॉल्ड एज इग्निशन। सो द टर्म ड्राइंग इज़ व्हेन द टेम्परेचर इज़ अबाउट, you can say 500 Kelvin, and the term ignition is used for the temperature above 500 to 1500 Kelvin. Okay, so in most of the cases actually the precipitate is free from many contaminants, okay, and there are only some water molecules and therefore it can be easily dried. तो अभी आप लोगों ने क्या किया, फ़िल्टर किया, फिर उसको वॉश किया, वॉश करने से मैक्सिमम इम्प्योरिटी तो निकल जाती है। तो इन दैट केस अपना पर्पज़ क्या है, यू हैव टू जस्ट रिमूव द मॉइस्चर दैट इज़ वाटर फ्रॉम योर प्रेसिपिटेट। तो आप उसको खाली ड्राई करते हो ओवन में तो भी चल जाता है। सो ईजीली यू कैन ड्राई इट एंड यू कैन गेट द ड्राई प्रेसिपिटेट। लेकिन इन सम केसेस देयर आर सम अदर इम्प्योरिटीज़ विच आर नॉट वॉश्ड विथ वाटर, तो वो अपने प्रेसिपिटेट के साथ ऐसी ही रह जाती है, तो उसका डीकम्पोजिशन करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इग्निशन, दैट मीन्स थोड़ा हाई रेंज पे उसको हिट करना, दैट इज़ फ्रॉम 500 केल्विन टू 1500 केल्विन। सो इन सच सिचुएशन इट इज़ ऑब्जर्व दैट फ्यू प्रेसिपिटेट रिमेन एज इट इज़, लेकिन कुछ तो डिकम्पोज भी हो सकते हैं, इसीलिए वी शुड हैव अ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑन द टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को फिक्स करके रखेंगे एंड देन वी विल कैरी आउट द ignition. Okay, so ignition is the step where the unstable precipitate is converted into stable precipitate. Okay, so it will convert your precipitate at a constant composition and at a stable type of precipitation. So this will help you to dry your precipitate completely and it will also remove all type of impurities. So this is called as ड्राइंग और इग्निशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। अभी ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप 2 चीज़ में कैरी आउट हम लोग कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेसिपिटेट अनस्टेबल है तो यू हैव टू कैरी आउट इंसिनरेशन ऑफ द फिल्टर पेपर अलॉन्ग विथ योर प्रेसिपिटेट और इन प्रेजेंस ऑफ योर प्रेसिपिटेट। जैसे मैंने बताया था कि फ़िल्टर पेपर पे अगर वो पूरी तरह स्टिक हो चुकी है और ज़्यादा हीट देने के वजह से क्या होगा, हमारे प्रेसिपिटेट जल जाएगा। ओके, इट विल गेट डिकम्पोज। तो वाटर रिमूव भी नहीं हो रहा है, फिल्टर पेपर भी नहीं निकल रहा है और प्रेसिपिटेट ड्राई भी नहीं हो रहा है ना, बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट अनस्टेबल। तो हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू बर्न आवर प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विद द फिल्टर पेपर। जिस फिल्टर पेपर में उसको लिया है ना फ़िल्टर करने के लिए, उसी के साथ आप उसको बर्न करो इन क्रूसिबल। तो वो जो फ़िल्टर पेपर है वो तो पूरा जल जाएगा और हम लोगों ने वॉटमन यूज़ किया है तो उसका ऐश कंटेंट भी कम होगा। सो देयर विल बी नो इफ़ेक्ट ऑन आवर
प्रेसिपिटेट। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसका प्रेसिपिटेशन और फिल्ट्रेशन हम लोगों ने सिंटर ग्लास क्रूसिबल में किया है ना, इफ़ द प्रेसिपिटेट इज स्टेबल इट इज़ फिल्टर्ड थ्रू सिंटर ग्लास क्रूसिबल एंड देन इट इज़ ड्राइड इन ओवन एट सुटेबल टेम्परेचर। वो जो आपका छोटा सा सिंटर ग्लास क्रूसिबल है उसको आप सीधा ओवन में रख दो, इट विल गेट कम्प्लीटली ड्राइड एंड यू विल गेट क्लियर, ड्राई एंड प्योर precipitate. Okay, so this is the significance of drying or your ignition. Okay, so this is all about different steps we have carried out during our precipitation gravimetry. फिर एक बार अगर आपका फिल्टर पेपर या फिर आवर सिंटर ग्लास क्रूसिबल ड्राई हो गया तो उसके बाद हमको क्या करना है, यू हैव टू स्क्रैच द प्रेसिपिटेट और फिर ड्राई प्रेसिपिटेट का वेइंग करना है ना, कितना वेट आता है। तो वेट हम लोग कैसे लेंगे, पहले टेयर करेंगे जो आपने क्रूसिबल रखा है और फिर आफ्टर प्रेसिपिटेट उसका वेट लेंगे, तो उसमें से जो डिफरेंस होगा b माइनस ए दैट विल बी योर वेट ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये वेट ऑफ प्रेसिपिटेट हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे एंड फ्रॉम दैट वी विल फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ अननोन सैम्पल ऑफ गिवन आयन इज प्रेजेंट या फिर गिवन मेटल इज प्रेजेंट। ओके, सो नाउ वी विल सी application of gravimetric analysis. This is all about different type of steps that we have already discussed. Now we will see कि ये जो gravimetric analysis हम लोग करते हैं उसका actual में use क्या है। Okay, so very first and important use is estimation of nickel using dimethyl glyoxime solution. Okay, so any alloy मतलब क्या, जिसमें 2-3 मेटल का कॉम्बिनेशन है, तो अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकेल इज़ ऑब्टेन। और अगर कॉपर और निकेल का अलॉय है तो उसमें निकेल कितना है, अगर ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको कॉपर को निकालना पड़ेगा उसमें से। तो हम लोग मानो कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में उसको निकाल देंगे और अभी जो बचा कुचा हमारा निकेल है उसको हम लोग ग्रेविमेट्रिकली कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू, तो निकेल जो है उसको प्रेसिपिटेट करना है एज निकेल डाइमिथाइल ग्लायोक्साइम बाय एडिंग अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लायोक्साइम। ओके, देन यू हैव टू ऐड slightly excess of aqueous ammonium solution. Okay, and this precipitate you have to again carry out all the steps, that is filtration, washing, drying. Okay, और फाइनली हम लोगों को जो प्रेसिपिटेट मिलेगा इट विल बी ऑफ निकेल डाइमिथाइल ग्लायोक्साइम। ओके, तो क्या करना है हम लोगों को, पहले आपको निकेल का सॉल्यूशन लेना है। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, हम लोग प्रैक्टिकल भी लेंगे ना, तो प्रैक्टिकल में आपको कैसे करना है, फर्स्ट यू विल बी प्रोवाइड निकेल क्लोराइड्स कंपाउंड। ओके, उसका आपको कुछ अमाउंट देंगे, उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू डाइल्यूट इट अप टू द मार्क। मतलब अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड फ्लास्क लिया तो उसके नेक के ऊपर जो मार्क होता है वहाँ तक हम लोगों को उसको डाइल्यूट करना है। देन यू हैव टू टेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जितना अमाउंट बोला है, इन दैट यू हैव टू ऐड 1:1 अमोनिया सॉल्यूशन टू रेज द pH and then you have to add slowly alcoholic solution of dimethyl glyoxime। मतलब यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट कौन है, डाइमिथाइल ग्लायोक्साइम, है ना। निकेल सॉल्यूशन आपने बना लिया, उसमें आप लोगों ने क्या ऐड किया, 1:1 अमोनिया सॉल्यूशन, उसका रोल सिर्फ pH इंक्रीज करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या ऐड कर रहे, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है हमारा dimethyl glyoxime. Once you add dimethyl glyoxime, slowly it will develop red color precipitate, पूरा रेड कलर का precipitate बन जाएगा। हम थोड़ा एक्सेस DMG ऐड कर देंगे so that अगर कोई और थोड़ा पार्टिकल बचता है तो वो भी precipitate हो जाएगा। Then you have to heat it in water bath, उसको थोड़ी देर आपको डाइजेस्ट करना है। After digestion you have to filter it, फिल्ट्रेशन के टाइम 1:1 अमोनिया सॉल्यूशन से उसको स्लोली वॉशिंग देना है टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज़। फिर फाइनली आपका जो क्रूसिबल होगा, सिंटर ग्लास क्रूसिबल या फिर फिल्टर पेपर, उसको कम्प्लीटली ड्राई करना है इन योर ओवन। और फिर एक बार ड्राई हो गया देन यू हैव टू वे द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, वो जो वेट है प्रेसिपिटेट का वो लेके कैलकुलेशन करना है। सो यू कैन सी हियर
जो आपका निकल है, निकल के साथ आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, ग्लाइकोजाइम सॉल्यूशन। तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम ऐड करने के बाद यू विल गेट कॉम्प्लेक्स ऑफ निकेल डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। यू कैन सी द structure at right side. So that is the structure of nickel dimethyl glycozyme, which is of red color. Okay, so I will also post the video of this particular practical. You can go through that and you will find out how the experiment of nickel dimethyl glycozyme gravimetry is carried out. Okay, so this is the first application of gravimetry. The second application is determination of sulfur in organic compound. Okay, तो sulfur containing organic compound is actually mixed with excess of sodium peroxide. Okay, और फिर हम लोग क्या करते, उसका जो कंटेंट है सल्फ़र कंटेंट वो फाइंड आउट कर सकते। तो सल्फ़र ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सल्फ़र भी हो सकता है एज अ हेटेरो एटम। तो वो कितना है वो हम लोग ग्रेविमेट्रिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सो हियर अगेन यू हैव टू प्रेसिपिटेट, अगर उसमें बेरियम है तो एज अ बेरियम सल्फेट, फिर उसमें सारे जो हमारे रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो करने, प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एंड फाइनली यू हैव टू ट्रांसफर योर प्रेसिपिटेट इन अ क्रूसिबल एंड यू कैन फाइंड आउट द वेट एज अ बेरियम सल्फेट। मतलब जो हमारा सल्फ़र है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो ग्रेविमेट्रिकली निकालने के लिए उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रेसिपिटेट में। तो सल्फ़र हम लोग कौन सी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे, बेरियम सल्फेट, है। सो ऑल योर सल्फ़र विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट, है ना। और ये बेरियम सल्फेट का हम लोग सारा स्टेप्स करेंगे ग्रेविमेट्री, एंड फाइनली वी विल फाइंड आउट वेट ऑफ योर बेरियम सल्फेट विच विल बी एज converted or estimated as weight of sulfur in your given compound. फिर finally last is estimation of aluminium as its oxide. तो अगर आपके पास एस्टिमेशन करना है एल्यूमिनियम का, तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसका प्रेसिपिटेट तो चाहिए, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड. So aluminium is precipitated as hydrated aluminum oxide by means of ammonia. Okay, if you add ammonium chloride solution, what will happen, gelatinous precipitate is formed, है ना। और फिर उस precipitate को जब आप अच्छे से हीट करोगे, it will get converted into aluminum oxide. तो एक बार precipitate बन गई aluminum as aluminum oxide, then we will again filter it, dry it, और फिर weigh करेंगे किसका, aluminum oxide का, and then from aluminum oxide we can find out amount of aluminum. Okay, so this is all about the application of gravimetry. So here we are finishing with our second unit or second chapter, that is classical method of analysis. So in our next lecture we will meet with some new topic. Till that, you take care and stay safe. Thank you.